Welcome everyone to a new video. So in this video we are going to talk about various questions which were based on organic chemistry, and we are going to look at the solutions to the questions that were asked in NET December 2019. So this video has been long overdue. So without wasting any time, let's jump into the questions and look at what are the possible solutions to the various questions that were asked. So here what we had is the question that was asked. It is basically involves 1,2-dibromo cyclohexene. So this is nothing but here the dibromo is trans to each other and it is treated with potassium tertiary butoxide. Now अगर हमको पोटेशियम टर्शियरी बुटॉक्साइड के बारे में थोड़ा सा पता हो या इसकी प्रॉपर्टी पता हो तो we clearly understand it is a very bulky base. It is never involved in any sort of a nucleophilic substitution. मतलब इस बेस के साथ you cannot observe reactions like SN2 substitutions. तो इसका मतलब option 3 and option 4 they are out of the picture. They cannot be because they can only they can only form if there is an SN2 substitutions that might be taking place. Whereas, as I said, with a bulky base like potassium tertiary butoxide, this is not a possibility. So here what are we talking about? Here we are talking about E2 elimination basically. And for the E2 elimination to take place, both the eliminating group must be anti-periplanar to each other. इसका मतलब अगर E2 elimination हो रहा है, मतलब अगर यहाँ पर हाइड्रोजन और ब्रोमो या HBr निकल रहा है तो दोनों के दोनों ग्रुप हमारे एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए. अब हमारा नाउ द क्वेश्चन इज आउट ऑफ 1 and 2 which one is the right option? One of them is the right option. Okay, let's look into it. So if we draw the cyclohexane structure, मतलब अगर चेयर फॉर्म ड्रॉ करके देखें then what we will realize, so this is nothing but this is trans. ओके और अगर हम ट्रांस क्या करें, ट्रांस तो करेंगे या तो ये ट्रांस हमारा क्या होता है एक्शियल होता है या इक्वेटोरियल होता है. और अगर हम इसको एक्शियल ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है और ये वाला ब्रोमो या फिर ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ब्रोमो ये दोनों एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर नहीं हैं. सो इसका मतलब अगर यहाँ से हमारा टर्शियरी बुटॉक्साइड अगर इस पर अटैक करता है यू जस्ट कैन नॉट फॉर्म दैट. मतलब आपका जो ऑप्शन A है, ऑप्शन 1 है, that is just not possible. What can happen instead of these hydrogen? If we look at this particular hydrogen, this hydrogen and this bromine is anti-periplanar and this hydrogen and this bromine is anti-periplanar. ठीक है, इसका मतलब अब क्या है कि पोटेशियम टर्शियरी बुटॉक्साइड आसानी से can plug these hydrogens and can this particular compound can undergo elimination to give you this particular compound. यहाँ पर आपको क्या मिलता है, eliminated product मिलता है. So this has been represented in the chair form. यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन हुआ, ये बॉन्ड इधर आया, ब्रोमीन रिलीज हो गया. So this can also be represented like that. ठीक है, अब हमको शायद समझ आ गया होगा why this is not the right answer, why this is the correct answer. Okay, so option 2 was the correct answer. Now let's look at another question. So this question I have already made a video on this question. This is actually based on Wharton reaction. So let's look into the what's happening. So यहाँ पे मैंने इसका मॉलिकुलर मॉडल लिया है वो आप एक्सप्लेन करने के लिए. देखिए पहली स्टेज तो आपको क्लियर दिख रहा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड से this conjugated ketone has been treated with hydrogen peroxide and NaOH. So इसका मतलब what is happening is basically an epoxidation of alkene. Now there are two possibilities. The epoxidation can take place from the top phase, it can take place from the bottom phase. So what I have said that it is taking place from the bottom phase, and why is it so? In order to understand, we must look at the molecular model of the olefin. In exams I know this might not be available, आपको ये available नहीं होगा, but this is just to make you guys understand why the epoxidation is taking place from the bottom phase. Now what this is actually, यहाँ पे मैंने इस कार्बन को different दिखाया. This is nothing but this is the methyl group, this is the carbon. So you can clearly see this is kind of a half book जैसे open होती है वैसी है, and this is nothing but a carbonyl group. और ये वाला आपके कार्बन के साथ हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन है. सो दिस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इट इज दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ठीक है, ये दोनों के दोनों. और ये इसको आप ब्लू को इसको मिथाइल ट्रीट कीजिए. सो दिस इज अ मिथाइल ग्रुप, दिस इज अ मिथाइल ग्रुप, एंड हियर व्हाट यू हैव इज अ मिथाइल ग्रुप. सो दिस इज how it looks like. From the top
you can clearly see this is how it looks like. So here what you have is the carbonyl, यहाँ पर आपका हमारा क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, and this is the methyl. Now we can clearly see that there is a clear bulk of methyl group from the top face. So what do you think would be much more easier for the epoxidation to take place? It would be much easier for it to approach from the bottom, क्योंकि वहाँ से क्या है कि आपका बल्क काफ़ी कम है, इसीलिए आपका जो इपॉक्सीडेशन होता है ये नीचे से ही होता है. और अगर हमारा यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप होता है, लेट अस सपोज इंस्टेड ऑफ मिथाइल ग्रुप had there been an hydroxy group here, अगर यहाँ पर OH होता, then epoxidation would have taken from the top face. So okay, so as a result of which what you're getting is epoxidation from the bottom face. So this is what you form. ठीक है. Now once we understand this is what we are getting, so we know either option 1 or 2 this is correct. Then second step is the treatment of this ketone with hydrazenes. So what do we generate form is basically hydrazone, और hydrazone हमारा ऐसे बन जाता है, and then it's a simple rearrangement reaction. So there is a transfer of hydride to give you this particular intermediate. Now the driving force for this particular reactions to take place is the elimination of nitrogen. So मैं हमेशा बोलता हूँ कि remember one thing, whenever you are releasing neutral gases or neutral molecules like nitrogen, CO2, water, whenever such molecules are getting released out of the system, the process is pretty exothermic and it is thermodynamically favored. हमेशा एक चीज़ याद रखें. और यहाँ से हमारा नाइट्रोजन रिलीज हुआ, what do you end up getting is this particular olefin allylic alcohol. ठीक है, तो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हमारी यही रहेगी. ठीक है, जब इस तरह से आपका ओपन हो रहा है, देयर इज नो चेंज इन द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ OH दैट इज हैपनिंग. सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच दिस इज द करेक्ट आंसर. सो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है. नाउ लेट्स लुक एट अनदर. सो दिस इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. सो let's jump into it. Let's try and see. So what do you have is this particular amine. It is being treated with methyl iodide, potassium carbonate. DBU is also a base, okay, and DMF is a solvent. Now जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आई कैन क्लियरली टेल यू ऑप्शन 1 and 3 यू कैन क्लियरली नेग्लेक्ट इट, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से क्या बोला हुआ है कि आपको भटकाने की कोशिश की गई है. यू कैन नॉट जनरेट अ कार्बोनियन हेयर विद पोटेशियम कार्बोनेट, बिकॉज हमारा नाइट्रोजन प्रोटोनेटेड है ही नहीं. ठीक है, द कार्बोनियन कैन ओनली जनरेट इफ द नाइट्रोजन इज प्रोटोनेटेड, ओनली देन दिस हाइड्रोजन कैन बिकम एसिडिक इन नेचर, जो कि एग्जैक्टली हो रहा है. क्योंकि नाइट्रोजन, अब आप देखिए नाइट्रोजन के पास अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो, मतलब टर्शरी एमीन, दिस इज नथिंग बट इट इज़ अ टर्शरी एमीन. सो वेन एवर यू ट्रीट टर्शरी एमीन विद मिथाइल आयोडाइड, it very quickly it forms the quaternary ammonium salt. तो यहाँ पर मैंने आयोडाइड नेगेटिव, मतलब इसका काउंटर है, मैंने यहाँ दिखाया नहीं है, बट दिस इज व्हाट इट इज, what is form in C2. आपका क्या हो रहा है, now when you are adding a potassium carbonate DBU base, मतलब ये जो under these conditions you can only generate a thermodynamically controlled condition, मतलब आपका इस पोजीशन से आपका कार्बोनियन हमारा निकल जाता है. ठीक है, इट डजंट गो फ्रॉम दिस वन. हियर व्हाट वी हैव, व्हाट यू हैव इज अ एस्टेरिक ग्रुप, और हमारा नाइट्रोजन क्या हो गया, प्रोटोनेटेड हो चुका है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो चुका है. इसका मतलब क्या है कि इट इज पुलिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कार्बन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दिस हाइड्रोजन हियर it is pretty acidic, as a result of which even a weaker base like DBU and potassium carbonate, they can easily plug it. Okay, so what you generate is this particular हमारा क्या इलाइड. ठीक है, एक तरह का हमारा नाइट्रोजन इलाइड जनरेट हुआ. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट यू आर डूइंग इज बेसिकली यू आर हीटिंग इट. सो व्हाट यू आर कैरिंग आउट इज बेसिकली एन एज अ 2,3-Wittig rearrangement अंडर हीटिंग कंडीशन. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. नाउ देयर आर 2 possibilities that this particular intermediate can exist as. ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी हमारी ये है कि जिसके अंदर हमारा मिथाइल ग्रुप, ठीक है, मिथाइल ग्रुप की हम यहाँ देख लेते हैं कि मिथाइल ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है. दिस इज सॉरी नॉट मिथाइल, या ओलिफिन की हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, दिस इज ट्रांस. ठीक है, तो हमने जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट हमने ड्रॉ करी है, इसके अंदर भी हमारा क्या है कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, ट्रांस है. नाउ क्योंकि 2,3-Wittig रीअरेंजमेंट के बाद हमारा जो ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और हमारी जो मिथाइल और इन दोनों की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, दिस इज, हम यहाँ पर इसको पता क्या कहेंगे, हम यहाँ पर इसको बोलेंगे रिलेटिव स्टीरियोकेमिस्ट्री बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी हमारी मॉलिक्यूल में शुरू से हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है. तो दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री हम कब बोलेंगे, रिलेटिव स्टीरियोकेमिस्ट्री बोलेंगे इसको. तो ये हम इसको मैं फेवर्ड कॉन्फर्मेशन क्यों बोल रहा हूँ, फेवर्ड कॉन्फर्मेशन इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम ये ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा एस्टेरिक ग्रुप और मिथाइल ग्रुप जब मैं इधर की तरफ लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये क्या है कि दिस इज प्रेजेंट एट दिस सूडो इक्वेटोरियल पोजीशन, एंड दिस एस्टर इज प्रेजेंट ऑल्सो प्रेजेंट एट दिस सूडो इक्वेटोरियल पोजीशन. वी नो व्हेन
the two bulky groups when they are present at the pseudo equatorial position, the interaction is kind of a very very minimal. ठीक है, minimal interaction होता है और these are much more favored. और हमको पता है कि जब यहाँ पर हमारा क्योंकि 2-3 विटिक रीअरेंजमेंट है, वो हमें कैसे पता चलेगा? मैंने हमेशा बोला है कि देख लिया कीजिए कि नया बॉन्ड कौन सा बन रहा है और कहाँ से सबसे पहले तो बॉन्ड टूट रहा है. हमको पता है कि ये वाला बॉन्ड हमारा क्या है, वाला हमारा बॉन्ड टूट रहा है. ठीक है, हमारा इस साइड कितने हमारे एटम्स है 1 2 3. ठीक है, और इस साइड हमारे कितने एटम है 1 2, क्योंकि ये इन्वॉल्व कर रहा है नाइट्रोजन एलाइड. सो दैट इज वाई इसका नाम जो एजा यहाँ से आया, बिकॉज इट इज इन्वॉल्विंग नाइट्रोजन एलाइड. एंड देर आर 2 एटम्स दैट आर इन्वॉल्व दिस साइड एंड देर आर 3 एटम दैट आर इन्वॉल्व दिस साइड. सो दैट इज इट वाई इट इज कॉल्ड एजा 2-3 विटिक रीअरेंजमेंट. ठीक है, और जब हमारा ये बॉन्ड बना कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में, क्योंकि दोनों के दोनों शूडो इक्वेटोरियल हैं, तो इसका मतलब जो नया हमारा बॉन्ड बनेगा उसके अंदर दे विल ऑक्यूपाई द पोजीशन. एक तरह से अगर हम इसको, जैसे कि मैंने, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा फेल्किन एहन मॉडल का, उसके अंदर भी मैं इसी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है कि इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल और 1 2 इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल क्या होते हैं, हमेशा ट्रांस होते हैं. सो दैट इज इन अ वे दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दैट. ठीक है, और अगर आप इसको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. सो दिस इज हाउ यू विल एंड अप गेटिंग दिस एज दी मेजर प्रोडक्ट. और इसका जो अनफेवर्ड कॉन्फर्मेशन अगर मैं लिखने की बात करता तो अनफेवर्ड कॉन्फर्मेशन उसका ये होता है, जिसके अंदर हमारा एस्टेरिक ग्रुप क्या है, हमारा एक्सियल पोजीशन में प्रेजेंट है. एक्सियल पोजीशन में प्रेजेंट होने की वजह से हमको पता है दिस इज नॉट फेवर्ड, दिस इज लेस स्टेबल, एंड दिस वुड हैव गिवन अस दिस पर्टिकुलर कंपाउंड. ठीक है, जो कि हमारा माइनर होता. सो अगर हम इस सबको कंसिडर करें तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 4. आपको समझ आया होगा, आई होप. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट आई होप आपको समझ आया होगा. So let's look into the other problem. So this is quite an interesting problem. I really like this problem. So what we have is a ketonic ester, and what we are doing is treating with with the methyl vinyl ether under acidic condition, and then treatment with a lithium enolate. Okay, that's what we are doing. तो सबसे पहली चीज़ तो आप क्लियरली देख सकते हैं, मैं इसको, इन्होंने पूछा क्या व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, मतलब ये अगर हम एग्जीक्यूट करें इस प्रोडक्ट को लेने के लिए व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑर्डर, कौन कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व है. सबसे पहली चीज़ तो मैं देख के क्लियरली बता सकता हूँ, क्योंकि आप यूज़ कर रहे हैं मिथाइल विनाइल कीटोन. ठीक है, पहले स्टेप में. सो आई कैन टेल यू दैट इट हैज़ टू बी द माइकल एडिशन. सो पहला स्टेप आप क्लियरली देख सकते हैं, आप आंखें बंद करके ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 में से एक करेक्ट होगा. सो आप ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन 4 को यहीं नेग्लेक्ट कर सकते हैं. सो नाउ यू हैव टू गो अबाउट ड्राइंग द मैकेनिज्म. ठीक है, और ये क्या है, क्योंकि आपका H2SO4 यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब दिस इज इन्वॉल्विंग लाइक यू नो एसिड कैटलाइज्ड माइकल एडिशन रिएक्शन. लेट्स लुक इनटू इट. तो सबसे पहला क्या होता है कि एसिड कैटलाइज्ड माइकल एडिशन में, सो व्हाट यू आर यूजिंग द H2SO4, तो प्रोटोनेशन हो रहा है आपका. ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि आपका, क्योंकि प्रोटोनेशन होने के बाद आपका क्या है, दिस इज द बेस दैट इज रिलीज. ठीक है, H2SO4 में से ये हाइड्रोजन प्लग कर रहा है. सो व्हाट यू आर फॉर्मिंग इज दिस पर्टिकुलर इनोल. ये हमारा क्या बना, इनॉल बन गया हमारा. इनॉल के जब व्हेन दिस बॉन्ड कम्स बैक, द डबल बॉन्ड इट अटैक्स इन द कॉन्जुगेट मैनर to give you this particular intermediate. उसके बाद प्रोटोनेशन डिप्रोटोनेशन केमिस्ट्री gives you this diketo. अब हमारा क्या हो रहा है, अब this can also be written like in this particular enol form. जब हम इसको इस पर्टिकुलर enol form में लिख रहे हैं तो फिर these lone pair of electron are coming back and the enol attacks the keto. So this step is called the aldol condensation. Now in the next step what you are getting is an elimination of the water to give you this particular हमारा कीटोन का. अब हमारा क्या चीज़ क्लियर हुई, पहला स्टेप माइकल, दूसरा एल्डोल. माइकल एल्डोल तो हम इससे से देख सकते हैं हमारा क्लियरली ऑप्शन 3 करेक्ट है, बट फिर भी हम इसको और थोड़ा एक आगे स्टेप बढ़ जाते हैं. अब हमने क्या किया, हमने लिथियम इलोनेट से इसको ट्रीट किया. अब यहाँ पर केवल एक ही हमारा क्या है कि देखो यहाँ पे हमारा एस्टर पे भी हो सकता है और हमारा कीटोन पे भी हो सकता है. ठीक है, ब्रोमो तो ये तो हमारा क्या है कि दिस पोजीशन इज़ लाइक टर्शरी, तो यहाँ पर तो हमारा कार्बोकैटायन भी जनरेट होना मुश्किल है, तो यहाँ पर तो SN2 हो नहीं सकता. तो एस्टर से ज़्यादा रिएक्टिव हमको पता है कीटोन है, क्योंकि एस्टर्स के अंदर हमारा क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दी ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. सो एस्टेरिक कार्बोनिल इज नॉट दैट रिएक्टिव. सो द ओनली प्लेस वेयर दिस लिथियम इलोनेट कैन अटैक इज दिस पर्टिकुलर कीटोन. अटैक करता है,
it forms this one. So the lone pair of electron on nitrogen comes back and this bond shifts. So this type of a rearrangement is called Corsi-Favorsky. Favorsky rearrangement में भी हमारा क्या होता है कि अल्फा हेलो कीटोन को इन्वॉल्व करता है वो. तो ये भी क्या हो रहा है हमारा, दिस इज Corsi. दिस इज नॉट एग्जैक्टली Favorsky बट दिस इज हाफ Favorsky. सो व्हेन दीज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कम्स बैक, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन 1 जो कि मैंने यहाँ डेजिग्नेट किया और 5 ये फॉर्म होता है. ठीक है, और यहाँ पे मैंने सबको पूरी की पूरी नंबरिंग भी दे रखी है ताकि आप क्लियरली समझ सकें कि कौन सा बॉन्ड किसके साथ कनेक्ट हो रहा है. तो जैसे कि मैंने दिखाया कार्बन नंबर 1 इज कनेक्टिंग टू कार्बन 5 और यहाँ पे ब्रोमीन रिलीज हो रहा है. सो कार्बन कनेक्टेड टू कार्बन 5 और बाकी सारी की सारी मैंने दूसरी नंबरिंग कर रखी है ताकि आप समझ सकें इसे आसानी से. सो ऑप्शन 3 वॉज द करेक्ट आंसर. This is a pretty straightforward problem. I mean, if you look at this question, so what we have is a thiopene having a methyl at 3 position treated with NBS. हमको पता है brominating agent है, and what we are using is a benzoyl peroxide, and even the solvent is benzene under heat. So these conditions are, tailor made for radical catalyzed bromination. और आँख बंद करके आप ऑप्शन 2, 3, 4 को नेगलेक्ट कर सकते हैं एंड ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. सो वी विल अंडरस्टैंड व्हाई. सो बेंजोइल पेरोक्साइड को जब आप हीट करते हैं, दिस इज व्हाट इट रिजल्ट्स इन द जनरेशन ऑफ फिनाइल रेडिकल. यहाँ पे मैंने अगेन वही जो चीज़ मैंने एम्फोसाइज की थी. सो हियर व्हाट यू फॉर्म इज अ बेंजोइड रेडिकल. तो इस रिएक्शन में आपका क्या हो रहा है कि रिलीज हो रहा है CO2 विच इज़ अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड. उसके बाद व्हाट यू जनरेट इज अ फिनाइल रेडिकल. फिनाइल रेडिकल क्या करता है, वो आपका प्लग कर लेता है हाइड्रोजन रेडिकल टू रिलीज. अब हमारा क्या है, बेंजीन हमारा रिलीज हो गया मॉलिक्यूल से, और बेंजीन ही हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, और उसके बाद जैसे ही हमारा ये CH2 रेडिकल जनरेट होता है, इट plugs the bromine radical to give you the desired benzylic brominated product. ठीक है, pretty straightforward problem थी ये. इस तरह से होता रिएक्शन है. So option 1 is the right one. So इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज दिस. बेसिकली क्या पूछा गया है कि हमसे पूछा गया है कि this particular substrate has been given to us, and here what we have is a methoxy at para position, and we have the tertiary butyl esters, and what we have is a NHCbZ. CbZ हमें बताया भी हुआ है कि क्या है, and they are treating it with the trifluoroacetic acid. It's a strongly acidic condition. So from what we have studied, I have already made a video on the various protecting group for the amine, so you can I will link up all the videos that are related to this video in the description. ठीक है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं. So अगर हमको पता होगा to deprotect the CbZ, what we need is the hydrogenation condition. मतलब हमको hydrogenation यूज़ करना पड़ता है, हमको H2PDC या उस तरह का हमें यूज़ करना पड़ता है. So वी क्लियरली नो जहाँ जिन ऑप्शंस के अंदर NH को डीप्रोटेक्ट किया है अमीन को, दैट इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन. तो मतलब ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 यू कैन क्लियरली नेगलेक्ट दीज ऑप्शन. सो यू कैन नेगलेक्ट ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3. नाउ in one of option number 2 they have also deprotected methoxy, but if we clearly remember कि methoxy को deprotect करने के लिए what we have to use is the Lewis acids like BBr3, BCl3. अगर आपको इसको बेसिक कंडीशन के अंदर अगर आपको करना है, ठीक है, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको यूज़ करना पड़ेगा फिनाइल थायोल सोडियम हाइड्रेट कंडीशन, तभी होगा. लेकिन बेसिक कंडीशन में आपका एस्टर भी हाइड्रोलाइज हो जाएगा. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, ऑप्शन 2 भी गलत है. तो इसी से पता चल रहा है हमें ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन इन विच CO tertiary butyl ester हैज़ बीन deprotected. हमको पता है कि अंडर एसिडिक कंडीशन tertiary butyl esters कैन बी easily hydrolyzed. So the mechanism is simple. ऑक्सीजन हमारा प्रोटोनेशन होता है TFA से to give you this particular कार्बोकैटायन. यहाँ पर हमारा ड्राइविंग फोर्स क्या है, इज द जनरेशन ऑफ दिस टर्शियरी बुटाइल कार्बोकैटायन, और यहाँ पर हमारा क्या जनरेट होता है, एसिड जनरेट हो जाता है. इट्स अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड टू डिप्रोटेक्ट द टर्शियरी बुटाइल एस्टर. So the correct option is option number. So in this particular reaction, what they have given us is this para-nitrobenzoic acid, and what they are saying is if we are subjected to hydrogenation using Rennie nickel at room temperature, so what are we going to get? पहली चीज़ तो हमको क्लियरली पता होनी चाहिए कि अंडर Rennie nickel कंडीशन देर हमारा ना तो हमारा एसिड रिड्यूस होता है, एसिड को हमारे कुछ नहीं होता. तो सबसे पहले जिन ऑप्शंस के अंदर एसिड के साथ कुछ भी किया गया उसको नेगलेक्ट कर दो. ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4
कैन ईजिली बी नेग्लेक्टेड. दूसरी चीज़ हमको पता है, वी नो दैट रेनी निकल दे कैन हाइड्रोजनेट द बेंजीन रिंग, उसको वो कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको जो प्रेशर चाहिए होता है दैट हैज़ टू बी वेरी हाई प्रेशर. और अगर हम इस प्रेशर को देखें, दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल रूम टेम्परेचर, मतलब आप एक बैलून के अंदर हाइड्रोजन को डालेंगे उतना प्रेशर है, ठीक है, बहुत कम है प्रेशर है. तो अंडर दिस कंडीशन द बेंजीन रिंग कैन नॉट बी reduced. So the only functional group that can be reduced under this condition is the nitro. So nitro this is the only functional group that can be reduced to amine. So this is exactly what I have said here. ठीक है. So the correct option is option number 4. कभी कभी क्या होता है कि the student get misled by the fact यहाँ वो 3 atmosphere को 3 equivalent समझ लेते हैं, and they think कि 3 equivalent का मतलब 1 2 3 बेंजीन को वो कर देगा, बेंजीन रिंग को कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है. ठीक है. So it does not reduce the benzene ring. Under such condition, these are pretty mild conditions, it will reduce only nitro. Option 4 is the correct answer. So this problem is based on one of the videos that I made, which was on the Corey-Winter reaction. It's a pretty straightforward problem. कुछ उसमें वो नहीं है. So they have asked you what is the correct answer and what are the groups, what are the other side products of this reaction, or what you can say what are the byproducts of the reaction. So what they are given us this particular diol, इसको अगर हम इंटर कन्वर्ट करें, ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, इसको इंटर कन्वर्ट करेंगे तो this is how it can be written. पहला स्टेप क्या है, this can also be called as TCDI, थायोकार्बोनिल डाइमिडाजोल. ठीक है. तो इसके साथ क्या होता है, हमारा थायोकार्बोनिल हमारा डेरिवेटिव बनता है. So this is what you form. Now when you are using trimethoxyphosphite, what it does, the lone pair of electron on it attacks the sulfur. ठीक है. सल्फर पे जब आपका अटैक किया, बॉन्ड हमारे ऐसे मूव हो गए. What it does is basically these electrons, they are taken back because the driving force for this phosphorus sulfur double bond formation is the strong affinity. This phosphorus sulfur bond is pretty strong. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमारा in the case of Wittig olefination, the driving force for the Wittig olefination is a formation of strong phosphorus oxygen bond. Similarly phosphorus sulfur bond भी हमारा relatively strong होता है. So इस केस में driving force क्या है, इसका बनना. So reaction का एक बाय प्रोडक्ट तो हमारा हो गया फॉस्फोरस सल्फर बॉन्ड. ठीक है. इसी से हमें हमारे क्लियरली समझ आ जाना चाहिए कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है. ठीक है. उसके बाद व्हाट डू यू फॉर्म इज दिस पर्टिकुलर कार्बन इंटरमीडिएट. कार्बन इंटरमीडिएट में द ड्राइविंग फोर्स, अगेन मैंने जैसे बोला है, इज द रिलीज ऑफ द न्यूट्रल मॉलिक्यूल. सो व्हाट यू आर रिलीजिंग इज अ CO2 एंड दीज टू फंक्शनल ग्रुप दे आर ट्रांस टू ईच अदर. सो व्हाट यू एंड अप गेटिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस ओलिफिन. सो द करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है कि ऑप्शन नंबर 1. सो व्हाट यू आर रिलीजिंग CO2, यू आर रिलीजिंग दिस रिएजेंट एंड ऑल्सो द ट्रांस ओलिफिन. ठीक है. प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम. इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है. जस्ट वॉच दैट वीडियो फॉर अदर एग्जाम्पल्स. Now let's come to this particular problem. Here what we have is we are treating it this particular compound with HBr and then methanol and these various variety of reagents, and we have been asked what are the correct options. So सबसे पहले देख लेते हैं when we treat this particular compound. So then this can also be written as when the oxygen के lone pair of electron when they come back. So this can be written like that. जब हमारा क्या हुआ कि HBr से आप ट्रीट कर रहे हैं. So HBr में हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इस तरह से उसको प्रोटोनेट कर रहा है. So once it protonates, the lone pair of electrons come back. So this can also be written like that. Now अब हमारा क्या होता है कि ब्रोमाइड आयन क्या करता है, ब्रोमाइड आयन हमारा सिंपली इस कार्बन पे अटैक करता है. What it does, इस कार्बन पे इसलिए अटैक करता है क्योंकि ना ऑक्सीजन हैज़ बिकम प्रोटोनेटेड. ऑक्सीजन हमारा प्रोटोनेटेड हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हैज़ बिकम वीक बिकॉज ऑक्सीजन इज विड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम दिस कार्बन. सो इसका मतलब हमारा क्या है कि इस कार्बन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया. सो इट बिकम्स वेरी ससेप्टेबल टू अटैक बाय द any nucleophile. तो ब्रोमीन यहाँ अटैक करता है, इट ओपन्स इट. सो दिस इज व्हाट यू एंड अप गेटिंग. नाउ अगला स्टेप हमारा सिंपल क्या है कि फिशर एस्टेरिफिकेशन, मिथेनॉल अंडर एसिडिक कंडीशन. सो व्हाट इट डज इज बेसिकली सिंपली एस्टेरिफाइज दी OMe. और हमारा उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारा ट्रीट किया गया है इस फॉस्फाइड हमारे रिएजेंट से. दिस इज़ नथिंग बट एन आर्बुजोव रिएक्शन है हमारा, जिसमें फॉस्फिन क्या करता है, इस कार्बन पे अटैक करता है, ब्रोमाइड आयन रिलीज होता है, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप ब्रोमाइड आयन इट अटैक्स द इथिल ग्रुप. तो हमारा क्या होता है, इथाइल ब्रोमाइड जनरेट होता है. सो दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे कम बैक टू गिव यू दिस फॉस्फोनेट. अब हमारा क्या हो रहा है कि
this phosphonate is then subjected to the hydrolysis condition. Hydrolysis condition में हमारा क्या होता है कि हमारा इथाइल एस्टर का भी हमारा हाइड्रोलिसिस हो गया एसिड बन जाता है. दिस इज कैन बी ऑल्सो हाइड्रोलाइज टू गिव द एसिड, और दिस इज नथिंग बट दिस इज अ प्रोटेक्शन ऑफ एन एमीन. एमीन का प्रोटेक्शन है. दिस इज अ थैलेमाइड प्रोटेक्शन ऑफ एमीन. सो दिस कैन ऑल्सो बी हाइड्रोलाइज अंडर एसिडिक कंडीशन टू गिव यू द amine. So the correct answer for this particular question was option number 2. So the major products, so this question was based on the photochemistry, especially the Norrish type 2 reaction. Straightforward under photoradiated condition, what you generate is this radical on the carbonyl. उसके बाद हमारा क्या होता है, अल्फा बीटा गामा हम देखिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा. तो हमारा क्या है कि 1 2 3 4 5 6, दिस इज अ 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट. इफ यू सी एज दैट इज द रीजन वाई हमारा जो ऑक्सीजन रेडिकल है ये इस हाइड्रोजन को हमारे रेडिकल को एब्स्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि इट इज गोइंग वाया 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट. उसके बाद जब हमारा दिस रेडिकल हैज फॉर्म, तो व्हाट इट जनरेट्स इज द कार्बन रेडिकल एंड दिस रेडिकल. नाउ ये क्या कर सकता है, दोनों के दोनों कंबाइन करके इट कैन गिव यू दिस पर्टिकुलर कंपाउंड विच इज ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, एक बात ये, लेकिन आप ये बोलेंगे कि सिंस दिस रेडिकल हैज फॉर्म दिस कैन ऑल्सो देयर इज एन डबल बॉन्ड हेयर, इट कैन एग्जिस्ट इन अ काइंड ऑफ अ रेजोनेंस. तो मतलब it can give you this particular radical, and here what can happen, these two radicals now can combine. हमारे जब ये दोनों रेडिकल कंबाइन होंगे, सो व्हाट दे विल गिव यू इज दिस पर्टिकुलर ब्रिज्ड सिस्टम, ये होगा. लेकिन अगर हम देखें कि स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, तो हमको पता है कि दिस इज अ फ्यूज्ड कंपाउंड एंड दिस इज अ ब्रिज्ड कंपाउंड. सो द फ्यूज्ड कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द ब्रिज्ड कंपाउंड. सो दैट इज द रीजन वाई फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द ऑप्शन 4 was correct. So here, this is a straightforward, everything related to the olefin metathesis and Heck coupling has been covered, in my videos. और अगर आपने वो देखी होंगी तो आपके लिए बहुत आसान है प्रॉब्लम में. सो व्हाट वी हैव इज द फर्स्ट स्टेप इज द हैक कपलिंग. हमने क्या किया कि वी हैव यूज स्टाइरीन के साथ हमको पता है कि दिस इज वेयर हाउ द कपलिंग टेक्स प्लेस. तो मतलब इस वाले कार्बन के साथ हमारी कपलिंग होगी, इस वाले कार्बन के साथ नहीं. ठीक है, इसका पूरा मैकेनिज्म एंड एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन माय वीडियो ऑन द हैक कपलिंग. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट देन आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू गाइज टू वॉच इट. ठीक है, पहला स्टेप है स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा हैक कपलिंग, और दूसरा हम क्या कर रहे हैं, इंट्रामोलिकुलर ओलेफिन मेटाथेसिस कर रहे हैं हम. ठीक है, तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, कार्बन नंबर 2, ठीक है, और हमारा इस कार्बन नंबर 8 इसके बीच में हम बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं. और इसका भी एक पूरा का पूरा मैंने मैकेनिज्म डिस्कस कर रखा है अपने ओलेफिन मेटाथेसिस के वीडियो में, एंड हाउ दिस प्रोसीड्स थ्रू. ठीक है, सो व्हाट यू एंड अप फॉर्मिंग इज द 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू एंड अप फॉर्मिंग इज द 7 मेंबर्ड रिंग, एंड दिस इज द डिजायर्ड प्रोडक्ट, एंड दिस इज द अदर बाय प्रोडक्ट. अगर आपसे यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता था कि बाय प्रोडक्ट क्या है, सो दिस इज द अदर बाय प्रोडक्ट विच इज नथिंग बट यहाँ पर क्या हमारा स्टाइरीन. ठीक है, इस स्टेप में हमने स्टाइरीन यूज किया, दूसरे स्टेप में स्टाइरीन निकल गया. सो व्हाट यू एंड अप गेटिंग इज दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर 1 was the correct answer. And okay, so this question has been asked numerous times in NET exam. काफ़ी बार पूछा जा चुका है. So it's a pretty straightforward question. हमारा हाइड्राजीन लिया हुआ है, फिनाइल पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल हाइड्राजीन लिया हुआ है. अंडर एसिडिक कंडीशन व्हाट यू फॉर्म इज अ हाइड्राजोन, and then what you do is basically you subject it to the treatment sodium cyanoborohydride. हमको पता है कि sodium cyanoborohydride can be used for the reduction of the imines, और हमारा यहाँ पर क्या है कि हमारा इमीन है. ठीक है, इसका सिंपली क्या करता है, इमीन का ये रिडक्शन कर देता है. तो जैसे ही आपका इमीन का रिडक्शन करता है और आप इसको हीट कर रहे हैं, तो अंडर दीज कंडीशन दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे कम बैक, एंड टोसाइल बीइंग अ गुड लीविंग ग्रुप इट लीव्स. तो व्हाट यू जनरेट इज दिस पर्टिकुलर इमाइड. ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है, दिस इज इंट्रामोलिकुलर, हमारा क्या होता है कि हाइड्राइड ट्रांसफर टेक्स प्लेस. तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ आया, डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ, एंड अगेन द ड्राइविंग फोर्स, हाउ मेनी टाइम आई हैव टोल्ड यू, see here the nitrogen is releasing, that is why this hydride is being transferred. ठीक है, यहाँ से हमारा ट्रांसफर, डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ, एंड नाइट्रोजन इज बीइंग रिलीज्ड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. उसके बाद दिस क्वेश्चन इट सेज दैट इन व्हाट
कौन से वाले केस के अंदर वी विल एंड अप गेटिंग इज द मेजर ई। तो एक तरह से हमसे पूछा गया कि हमारे पास ट्रांस ओलिफिन किस केस में बना पड़ेगा। ये सारे वीडियो जिस भी टॉपिक के हैं हमारे, फॉर एग्जांपल ये विटिक ओलिफिनेशन का है, ये जूली ओलिफिनेशन का है, और ये वाला हमारा क्या है पीटरसन ओलिफिनेशन का है, तीनों के बारे में मैंने वीडियो बनाए हुए हैं और एग्जैक्टली सारे एग्जांपल लिए हुए हैं मैंने। तो अगर आपने वो वीडियो देखे होते तो आप तो ये आराम से कर लेंगे, फिर भी हम देख लेते हैं। पहले केस के अंदर हमें पता है कि अंडर BF3 थ्रेड कंडीशन व्हाट हैपेंस इज बेसिकली एंटी एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। पूरा मैंने समझाया हुआ है हाउ डज इट टेक्स प्लेस। सो एंटी एलिमिनेशन के लिए हमारे पास क्या होता है कि दिस SME एंड दिस दे हैव टू बी एंटी पेरीप्लेनर, ठीक है, क्योंकि हमारा BF3 थ्रेड से ऑक्सीजन क्या होता है हमारा BF3 से कोऑर्डिनेट करता है, उसके बाद वाटर क्या करता है, वाटर अटैक करता है, एंड दिस इज हाउ द एलिमिनेशन टू टेक्स प्लेस। एंड अगर हमारा पहले वाला अंडर दिस कंडीशन दिस विल गिव यू Z, ठीक है, ये आपको E नहीं दे रहा, दैट्स द प्रॉब्लम। दूसरे वाले का हम देख लेते हैं, हमने इसको H3PO4 से हम ट्रीट कर रहे हैं। अगर हम इस तरह से करेंगे, प्रोडोनेशन हुआ, दिस इज व्हाट इज फॉर्मिंग, अटैक किया, किसी भी तरह से हमारा किसी भी एंगल से, अगर हम मान लें कि यहाँ से हमारा एलिमिनेशन है, हमारा यहाँ से हमारा क्या हुआ, ये पाथवे मान लेते हैं कि वाटर हमारा यहाँ से निकल गया, तो दिस कार्बेनियन इज फॉर्म्ड, हाइड्राइड हमारा शिफ्ट हुआ, ये हाइड्राइड बन गया, उससे हमारा क्या हुआ कि ओलिफिन ये बना। नो वे जो हमको दिया गया है 2-methyl hex3ene, ये तो हमारा बना ही नहीं, ठीक है, इस केस से। नंबर 3 की बात कर लेते हैं, दिस इज सिंपली विटिक ओलिफिनेशन। हमारा क्या है कि दिस इज अ नॉन स्टेबलाइज्ड विटिक, ठीक है, यहाँ पे हमारा विटिक, अगर इससे हमारा जो भी ओलिफिन बनेगा हमने पढ़ा हुआ है, मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, सिंस दिस इज नॉट अ स्टेबलाइज्ड विटिक, दिस इज एन अनस्टेबलाइज्ड इलाइड, बिकॉज यहाँ पर हमारा जो कार्बेनियन है दिस इज नॉट बीइंग स्टेबलाइज्ड बाय एनी ऑफ द ग्रुप्स, ठीक है। सो इससे जब भी आप ओलिफिनेशन करेंगे यू विल ऑलवेज एंड अप गेटिंग इज दी Z ओलिफिन एज द मेजर प्रोडक्ट। और जो लास्ट ऑप्शन व्हाट यू आर डूइंग इज बेसिकली द जूलिया Kochinsky olefination, which is a modification of Julia olefination. So this gives you exclusive E olefin with more than 95% E selectivity. हमेशा आपको more than 95% मिलती है. That is why this is a method which is usually preferred to get the exclusive E olefin. So option हमारा जो था 4, that was the correct answer. और अगर आप मेरी वीडियो देख लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारे टॉपिक्स पे मैंने वीडियो में इस क्लियरली मैंने कई बार बोला है कि आई हैव मेड अ वीडियो ऑन द इवन CB एलिमिनेशन, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया गया आपको इवन CB एलिमिनेशन के लिए क्या चीज़ें देखनी है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर इंपॉर्टेंट। आप वो वीडियो अनमिसेबल है, डिस्क्रिप्शन में भी है, जस्ट वॉच दैट वीडियो, इट्स अ वेरी गुड वीडियो। सो पहले ऑप्शन में बोला गया है 2 ब्रोमोपेंटेन विद पोटेशियम टर्शियरी बुटॉक्साइड, 2 ब्रोमोपेंटेन ले लिया जी हमने, बोथ आर एंटी पेरीप्लेनर, हमको पता है कि E2 एलिमिनेशन हुआ, इट विल गिव यू दिस पर्टिकुलर, सो दिस इज नॉट फॉलोइंग इवन CB। दूसरा देख लेते हैं नाइट्रोमीथेन विद बेंजल्डिएट इन प्रेजेंस ऑफ KOH टू गिव यू बीटा स्टाइरिन। KOH लिया आपने, अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन किया, ये हमारा कार्बेनियन बना, इसने एल्डिहाइड पे अटैक किया, सो दिस इज व्हाट यू फॉर्म, सो व्हाट यू आर जनरेटिंग इज बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात इवन CB एलिमिनेशन की होती है, अगर इसकी फुल फॉर्म देखें, दिस इज नथिंग बट एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस। तो इसके अंदर हमारा देखें जो बेस है और जो एलिमिनेटिंग ग्रुप है, ऑल्दो दिस इज नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप बट इट इज लीविंग, ठीक है। और मैंने उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आपका यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे हमारा सायोनो भी हो सकता था, एस्टर भी हो सकता था, हमारा एल्डिहाइड भी हो सकता था, और इसकी अगर बीटा पोजीशन पे यू हैव एनी गुड लीविंग ग्रुप, it will always follow even CB elimination. Do watch that video, it's a very important video. So it is actually option number 2 which follows the even CB elimination, but हम बाकी के 2 भी देख लेते हैं। So what you have is a bromobenzene with sodamide, हमको पता है it clearly follows via benzyne intermediate, ठीक है। And in the last options what do you have is a parachloronitrobenzene and you're treating a sodium methoxide, हमको पता है this follows SNAR, substitution nucleophilic aromatic. So option 2 is the correct answer. Straightforward problem था ये। Now the correct order of basicity का पूछा गया है कि एक pretty straightforward है, ठीक है। हमको एक चीज़ तो पता है कि जो हमारा सबसे कम हमारा सबसे ज़्यादा बेसिक वही कंपाउंड होगा जिसका जो एनायन सबसे ज़्यादा लीस्ट बेसिक है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और हमको पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर लेस बेसिक देन द एलिफेटिक। उसका रीज़न क्या होता है, एरोमेटिक के केस में हमारा ये होता है क्योंकि देयर इज एन एक्सटेंडेड
स्टेबिलिटी बाय रेजोनेंस एज वेल। तो सबसे पहले तो हम इसके दो एलिफेटिक वर्जन हम देख लेते हैं। एलिफेटिक के अंदर एक क्या है कि हमारा कार्बेनियन जहाँ पे हमारा नाइट्रो है और कार्बेनियन हमारा जहाँ का है सायोनो है, ठीक है। हमको पता है कि नाइट्रोजन हमारा जो नाइट्रो ग्रुप है व्हाट इट हैज एज अपार्ट फ्रॉम नाइट्रोजन इट हैज 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, 2 ऑक्सीजन्स, ठीक है। तो हमारा जब ये नेगेटिव चार्ज इट इज गेटिंग स्टेबलाइज्ड बाय नॉट ओनली नाइट्रोजन बट ऑल्सो बाय 2 ऑक्सीजन। सो दिस हैज लाइक this is the most stability, this has the most stability, whereas here what you have is only a nitrogen, ठीक है। नाइट्रोजन हमको पता है is less electronegative as compared to oxygen, so इसका मतलब क्या है कि this is the most stable out of these two, in fact out of all of them, ठीक है। वो देख लेते हैं। अब बाकी जो दोनों के दोनों ऑप्शन हमें दिए हुए हैं तो इसका मतलब हमारा क्या है कि B is मोर बेसिक देन दी ए, ठीक है। मतलब हमारा ये हमारा ज़्यादा बेसिक देन दी ए। अब इन दोनों ऑप्शंस के अंदर से हम देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या है कि 3 नाइट्रो ग्रुप हैं। सो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है कैन बी स्टेबलाइज बाय नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो पोजिशन, पैरा पोजिशन एंड मेटा पोजिशन। इसका मतलब यू कैन राइट एन नंबर ऑफ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सो इट मीन्स दिस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू डी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम इसका करेक्ट ऑर्डर लिखने की कोशिश करें तो हमको पता है कि जैसे कि मैंने बोला एरोमेटिक हमेशा लीस्ट बेसिक होते हैं एलिफेटिक से, तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑर्डर है बी ए डी सी, ठीक है। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट हमारा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया। एक्चुअली दीज टू फर्स्ट इज एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ एक्सियल कायरलिटी, जहाँ पे हमारा क्या है कि एक्सियल कायरलिटी जहाँ पे हम देख सकते हैं दिस पर्टिकुलर रिंग दिस इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन एंड दिस इज इन द प्लेन एंड देन इट इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन, एंड द सेकंड इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लेनर कायरलिटी, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कायरलिटी। ये प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, आप सबने देखा हुआ है, आप सबको पता है। ये कुछ इतना इट्स नॉट अ प्रॉब्लम दैट इज समथिंग दैट एनीवन वुड हैव मिस्ड आई गेस। सो this is how we name them. So the group which is coming out of the plane, we go from the one which is going coming out of the plane to the one which is going behind the plane. मतलब ये हमारा रिंग क्योंकि बाहर है तो we number them as 1 and we go behind. So क्योंकि हम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं so it is named as M, ठीक है। अगर हम ये क्लॉकवाइज होता तो it would have been P, ठीक है। यही है। Now for this particular compound what we choose is a pilot atom. जिस समय हमारा substitution होता है उस वाले कार्बन को हम pilot atom लेते हैं and then we number it as 1 2 3 4. This is going clockwise, so this is like R. So pretty straightforward or easy problem था ये वाला। Now look at the NMR. Oh, this was pretty simple actually. I feel that the NMR problem was a very straightforward problem. Now हमको IR डाटा दिया हुआ है 1690 पे है, ठीक है। 1619 का मतलब क्या है कि हमारा इट हैज़ टू बी अ कार्बोनिल, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप क्लियरली देख सकते हो कार्बोनिल ऑप्शंस देख लेता हूँ। ऑप्शंस के अंदर हमारा ये एस्टर है, ये वाला भी क्या है कि एक तरह का एस्टर है। If on C13 if you see a signal at 197 कभी भी हमारा एस्टर का आ ही नहीं सकता, वो हमेशा हमारा क्या है कीटोन का आएगा, और कीटोन का आएगा तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 2 को तो आप भूल ही जाओ, ठीक है। जस्ट कैन नॉट बी। एस्टर्स का हमेशा C13 में सिग्नल आता है 170 के आसपास आता है और IR के अंदर 1750 के आसपास आता है, ठीक है। सो दिस क्लियरली प्रूव्स व्हाट वी आर डीलिंग विद द कार्बोनिल। नाउ दूसरी चीज़ हम देख सकते हैं कि आउट ऑफ 3 और 4 में से हम 4 को कैसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। आप 6.9 पे जो डबलेट आ रहा है और 7.8 पे डबलेट आ रहा है। डबलेट हमारा 8 हर्ट्ज तभी आ सकता है कि अब सब्स्टिट्यूशन इन दोनों का क्या हो, पैरा हो, ठीक है। तो इसी से हमें पता चल जाता है ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था ये NMR का है। सो ऑप्शन नंबर 3। नाउ दिस इज बेस्ड ऑन स्टैटर रिएक्शन। मैंने इस पर वीडियो बनाई भी हुई है, एग्जैक्टली सेम एग्जांपल मैंने अपनी वीडियो के अंदर लिया भी हुआ है। सो आई हैव टोल्ड यू हाउ द स्टैटर रिएक्शन कैन बी कैटलाइज्ड बाय sodium cyanide as a base. So in the first step it attacks the aldehyde, so this is what you form, and it just negative charge picks up the proton. So what do you form is a this is pretty much similar like a Cannizzaro reaction if you have seen. So once you generate a carbon in here, it undergoes conjugate addition, protonation, deprotonation to give you the desired compound. Exclusive काफ़ी लंबा वीडियोस पे मैंने बनाया हुआ है। I've taken a variety of examples. Just watch the video. The link is in the description. The problem is, you can see the correct answer here was option number 3.
So this problem was simply, so what you have is species, this particular compound having an iodo, nitro, we are treating it with the phenyl sodium salt of phenylthiol. So it was a simple SN2 substitution to give you the desired product. बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं हम, उसमें क्या बोला है. आयोडो को यहाँ पे वो रिप्लेस करेगा नहीं, ठीक है, रिप्लेस, क्योंकि अगर हम SNAR के बारे में भी सोचें, सो दिस नाइट्रो शुड हैव बीन पैरा टू आयोडो, देन वी माइट हैव थॉट अबाउट इट, बट इट कैन नॉट बी दैट ऑप्शन. तो मतलब ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रो को रिप्लेस कर नहीं सकता, हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. एंड इन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन व्हाट इट इज शोइंग इज द रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, बट वी नो इट विल अटैक फ्रॉम द बैक. SN2 substitution gives you the inversion of configuration. So the correct answer is option number 2. Straightforward problem tha. So here, okay, so here what we are saying, this was, they were telling what is the correct statement about this particular transformation. So this is nothing but a Diels-Alder reaction. So what Diels-Alder reaction के बारे में इन्होंने डेल्टा H डेल्टा G के बारे में बोला गया, ठीक है. So what we are doing, taking two molecules and we are heating it, we are getting the एंडो प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, ठीक है. पूछा गया है कि कौन कौन से फैक्टर्स करेक्ट हैं. तो हमको अगर देखा जाए तो गिब्स फ्री एनर्जी, हमेशा कोई भी सिस्टम में क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी हमारी नेगेटिव रहती है, तो अच्छा रहता है, ठीक है. तो हमारा इसके अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल, पहले एंट्रोपी की बात कर लेते हैं. सिंस वी हैव टू मॉलिक्यूल्स दैट आर कंबाइंडिंग टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ लार्ज डिक्रीज इन द एंट्रोपी. मतलब एनाट्रोपी हमारी क्या हो रही है कि काफ़ी नेगेटिव हो रही है. सो इसका मतलब जो भी ऑप्शन में एंट्रोपी नेगेटिव है, जस्ट लुक फॉर दोज ऑप्शंस. मींस यू कैन नेग्लेक्ट ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4 because in which in these options entropy is not negative, ठीक है. and now it is saying that what is happening, अगर हम देखें इस केस के अंदर बेसिकली पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम दो वीक पाई बॉन्ड को कन्वर्ट कर रहे हैं एक into two strong sigma bond. So इसका मतलब क्या है कि this process is going to be favored by enthalpy. It is going to be an exothermic. So it means that this is going to have the negative value. अगर इसकी हमारी negative value होगी only then the delta G is going to be negative, ठीक है. क्योंकि हमारे क्या थे यहाँ पे, हमारे 1 2 3 एक तरह से अगर हम कंसिडर कर लें, ठीक है, 3 हमारे पाई बॉन्ड थे और रिजल्टिंग मॉलिक्यूल में हमारे क्या है, ओनली 1 पाई बॉन्ड है. सो इसका मतलब हमने क्या किया, 2 पाई बॉन्ड को कन्वर्ट कर दिया जो कि वीक होते हैं इनटू 2 स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड. So it means it's an exothermic process. It means that delta H is going to be negative. So the correct option was option number 2. It is favored since it's an exothermic process. So the delta H is negative. And since we are converting two molecules into one, so it means there is going to be a large, negative entropy because the number of two reactants are getting converted into the one product. ठीक है, 2 मॉलिक्यूल से एक मिल रहा है. So option number 2. सो अगेन ये वाला भी हमारा क्या था कि पेरिसाइक्लिक के ऊपर था. लिंडलर कैटलिस्ट की हमें स्पेशलिटी पता है, ट्रिपल बॉन्ड्स को कन्वर्ट करता है हमारे सिस डबल बॉन्ड के अंदर, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर 1 का अंदर ट्रांस है, नेग्लेक्ट दिस. ऑप्शन नंबर 3 के अंदर ट्रांस है, नेग्लेक्ट दिस. सो इट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 के अंदर से वन ऑफ देम इज करेक्ट बिकॉज दिस इज यूज फॉर दिस सिस रिडक्शन ऑफ एल्काइंस. सो दिस इज व्हाट यू विल एंड अप गेटिंग. नाउ if we clearly look at this particular structures here, what we are doing, we are heating it. So since there are 8 pi electrons, so what it undergoes basically conrotation. Conrotation की वजह से this is what you will end up getting. Now and as soon as this particular compound is formed, since there are 6 pi electron, it further undergoes disrotation. So जब आपका ऐसा होता है, it will give you this particular compound. So straightforward problem है option number 2, ठीक है. Now correct order of rate of thermal decomposition of following compounds. Again thermal decomposition का rate directly depend करेगा stability of the carbanions. हम clearly देख सकते हैं कि option number 3 के अंदर when the decarboxylation will takes place, this particular carbanion is resonance stabilized. So more will be the stability, faster will be the rate of डीकार्बोक्सिलेशन. तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2 में से एक करेक्ट है, ठीक है. ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं. सिंस दिस इज अ नेगेटिव चार्ज दैट इज प्रेजेंट एट दिस साइड व्हिच इज नेक्स्ट टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, ठीक है. सो इसका मतलब दिस इज फेयरली मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर कार्बोनिन, क्योंकि अगर हम यहाँ पर CO2 हमारा निकल गया, ऑलरेडी हमारा बेंजीन क्या है, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, और उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्जेस फर्दर डिस्टेबलाइजेस इट. सो इन अ वे ए इज गोइंग टू हैव द लीस्ट rate of thermal decomposition. So the correct answer is CBA.
आई थिंक आपको समझ आ गया होगा. And then this is based on your McMurray coupling. Here what we have is an ester, what we have is a ketone. So this is how the reaction takes place using TiCl3. So this is a condition where what you generate is a low valent titanium. So this is the intermediate that you form. Here both the radicals, they combine to give you this intermediate. So the titanium oxide, it ejects out of the system to give you this enol ether. Now what you are doing is basically hydrolysis. Hydrolysis में हमारा enol ether can be easily converted into the ketone. So the correct answer was option number 2. अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है इसके बारे में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इस वाले रिएक्शन का ओरिजिनल प्रोटोकॉल देखना चाहते हैं, तो फर्स्ट टाइम कब हुआ था, इट वॉज डन बाय मैकमरी इन 1974. तो आप ये जैक्स का पेपर आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है. एंड दिस वाज बेस्ड ऑन इट्स अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई वुड से क्लास 12th की प्रॉब्लम है, ऑन Riemann-Tiemann reaction and Dakins reaction. So what you are doing is basically what you have is an phenol under chloroform KOH, Riemann-Tiemann reaction to give you orthoaldehyde, क्योंकि पैरा पोजीशन हमारी क्या है, ब्लॉक्ड है, ठीक है. ब्लॉक है तो दूसरी बात है, अगर ब्लॉक नहीं होती तो हमें मिक्सचर मिलता, ठीक है, ऑर्थो पैरा का. हमें यहाँ पे एक्सक्लूसिवली हमारा ऑर्थोएल्डिहाइड मिल रहा है. एंड नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज बेसिकली H2O2 NaOH. अंडर दिस कंडीशन व्हाट वी नो इज व्हाट वी जनरेट इज अ हाइड्रोपेरोक्साइड कार्बेनियन. So what it does, it basically attacks the aldehyde to give you this particular species. Now the oxygen, it comes back, so this entire aryl ring, it migrates to give you this particular format. Now इस पे further attack होता है protonation deprotonation chemistry to give you the desired 1,2 phenolic compounds. So straightforward problem, pretty easy. So it basically combined two name reactions, Riemann-Tiemann reaction and Dakins reaction. So let's look at other problem. Here what we have is epoxide treated with BF3. Let us just try and understand this systematically. So पहला step क्या है कि lone pair of electron on oxygen, they interact with the empty p orbital of the boron in BF3 thread. So what you form is basically it's get protonated, this gets negative charge. Now there are two ways. इस दो तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. अगर ये यहाँ से ओपन होता है, यहाँ से ओपन होता है, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन इसको यहाँ से करते हैं, तो इट विल बी द पाथवे ए. पाथवे ए में हमारा क्या है कि दिस इज व्हाट विल फॉर्म दिस पर्टिकुलर कार्बोकैटायन. सो हियर व्हाट वी हैव दिस इज द सेकेंडरी कार्बोकैटायन. हमको पता है सेकेंडरी इज रिलेटिवली लेस स्टेबल, और इसको एक बार क्या कर सकते हैं, हम एलिमिनेशन करके भी देख सकते हैं. इट विल गिव अस दिस पर्टिकुलर कंपाउंड. लेकिन यहाँ पर हम देखें कि दिस इज काइंड ऑफ अ लेस स्टेबल, तो ये वाला पाथवे हमारा नहीं होता. सो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा 4 है, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दिस गिव्स अस दी लेस स्टेबल कार्बोकैटायन. नाउ अगर हम इसको पाथवे बी से देखें, so what it generates is basically it generates this tertiary carbocation which we know is pretty stable. अब अगर हमारा यहाँ से अगर इसका एलिमिनेशन होता है, अगर हमारा हाइड्राइड डीप्रोटोनेशन होता है, सो व्हाट डू वी एंड अप गेटिंग इज दिस पर्टिकुलर इनॉल. ठीक है, इनॉल टॉटोमराइज होने के बाद गिव अस दिस पर्टिकुलर कीटोन. सो मतलब हमारा क्या कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, उसके अलावा आप फर्दर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, लेट अस एक्सप्लोर. उसके बाद हम क्या डिसाइड कर सकते हैं कि ये मिथाइल का यहाँ माइग्रेशन हुआ, देयर कुड बी अ 1,2 मिथाइल शिफ्ट. ठीक है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, हमारा ये वाला मिथाइल इधर आ गया. सो देयर इज अ कार्बोकैटायन हियर. इट सिंस इट्स अ ब्रिज हेड कार्बोकैटायन, इट कैन नॉट गिव यू दिस पर्टिकुलर कंपाउंड. मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 बताया गया, दिस डज नॉट सीम काइंड ऑफ अ फिजिबल, क्योंकि हमारा क्या है, हमारा ऑलरेडी ब्रिज्ड हेड पोजीशन, नॉट द फ्यूज्ड सिस्टम पे इस पोजीशन पे प्रेजेंट है. सो दिस इज काइंड ऑफ अ नॉट फेवरेबल. ठीक है, अब ऑप्शन नंबर हमारा ये इंटरमीडिएट बना था, इसी को थोड़ा होल्ड कर लेते हैं. अब इसके अंदर हम बोलते हैं देयर कैन ऑल्सो बी दी 1,2 मिथाइल शिफ्ट. मतलब हमारा यहाँ से हम मिथाइल भी तो शिफ्ट हो सकता है हमारा. ठीक है, बिल्कुल हो सकता है. अगर मिथाइल शिफ्ट होगा, इट विल गिव अस दिस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट. दिस माइट रीअरेंज और दिस माइट गिव अस दिस पर्टिकुलर कीटोन, जो कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 के अंदर बताया. दिस इज ऑल्सो साउंड्स काइंड ऑफ अ अनफिजिबल प्रोसेस, क्योंकि ये उस कार्बोकैटायन से जनरेट हो रहा है जो कार्बोकैटायन ऑलरेडी लेस स्टेबल है. और ये फिजिबल पाथवे इसलिए क्योंकि इसके अंदर हमारा मोर स्टेबल हमारा कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है पहले केस में, और दूसरा क्या है कि ईज ऑफ डीप्रोटोनेशन एट दिस साइड और टॉटोमराइज टू गिव यू द डिजायर्ड प्रोडक्ट. तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन. और उसके बाद हमारा क्या है कि दिस पर्टिकुलर केमिस्ट्री हैव ऑलरेडी कवर्ड इन दी
डाइथाइन केमिस्ट्री, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस इन दी अम्पुलोंग केमिस्ट्री के अंदर मैंने ये ऑलरेडी सारा का सारा कवर किया, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो. सो व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली, यू हैव दिस डाइथाइन, पहले आपने बुटाइल लिथियम से जनरेट किया. सो हमारे इस केस के अंदर हम कह रहे हैं कि ये डाइथाइन क्या कर रहा है, इपॉक्साइड को ओपन कर रहा है. ठीक है, इट्स नॉट अटैकिंग द क्लोरो. इपॉक्साइड को हमारा क्या किया, इसने अटैक किया. वंस यू जनरेट ओ नेगेटिव अटैक्स दिस कार्बन. उसके बाद हमारा क्या, क्लोराइड हमारा रिप्लेस हो गया. ठीक है, सो व्हाट यू गेट इज एन इपॉक्साइड, और अंडर मर्क्यूरिक कंडीशन व्हाट यू जनरेट इज एन एल्डिहाइड. ठीक है, एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर ये हमारा इपॉक्साइड पे इसलिए अटैक कर रहा है, एक तो इपॉक्साइड हमारा टर्मिनल है, नंबर 1. ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि इससे बड़ा फैक्टर हमारा क्या है कि दिस क्लोराइड, दिस इज अ सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल क्लोराइड. एक तो क्लोराइड इतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है हैज़ कंपेयर टू ब्रोमोन, दूसरा इट इज प्रेजेंट एट द सेकेंडरी पोजीशन. सो दैट इज वाई दिस कार्बेनियन इज नॉट अटैकिंग दिस कार्बन डायरेक्टली. ठीक है, जबकि इस केस के अंदर हम देखें, here what we have is an option of an epoxide versus an primary alkyl bromide, और हमको पता है primary alkyl bromide are much more reactive as compared to the secondary alkyl chloride. So that is why this carbanion attacks the SN2, undergoes kind of an SN2 substitution to give you this diethine. आपने mercuric डाला, is the deprotection of diethine. ठीक है, to give you the desired aldehyde. So that is why इन दोनों के केसेस के अंदर हमारा क्या है कि आंसर, हमारे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है. ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि वाई इट इज अटैकिंग द इपॉक्साइड एंड नॉट द क्लोरो. सो दिस प्रॉब्लम वॉज बेस्ड ऑन दी C13 वैल्यूज. हमको पूछा गया है कि व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वैल्यूज ऑफ C2, 2, 3 एंड 4. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है. सबसे पहले तो क्या करो, जस्ट ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. इफ यू विल ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यू विल अंडरस्टैंड. सो लेट्स जस्ट ड्रॉ. So once you will withdraw the electrons, so that is how the resonance of pyridine looks like. If the electrons are taken by the pyridine, there's nitrogen which is electron withdrawing in nature. ठीक है, so the negative charge comes here. So the carbon number 2 and carbon number 4 are electron deficient, kind of a. So in a way, in C13, carbon number 2 and carbon number 4, if they are if they are de-shielded. So it means that if they are electron deficient, it means in C13 they will be much more de-shielded as compared to carbon number 3. So आप जिस भी ऑप्शन के अंदर हमारा क्या है कि कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 की वैल्यू मतलब ज़्यादा है 3 से, दैट इज़ द राइट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर 3 अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या है कि कार्बन नंबर 2 की वैल्यू क्या 150 है, कार्बन नंबर 4 की 130 है. ऑब्वियसली 150 बनता भी है क्योंकि दिस कार्बन इज राइट नेक्स्ट टू नाइट्रोजन. सो इट मीन्स ऑन दिस कार्बन this nitrogen has a direct impact because this is kind of not an ortho, it is directly attached to this particular carbon, whereas carbon number 4 is a little distance away. But as a result of the resonance, since carbon number 4 is also electron deficient in nature, so this is kind of a de-shielded, जबकि हमारा कार्बन नंबर 3 के इट्स मोर ऑफ अ शील्डेड कार्बन. और अब बाकी किसी भी ऑप्शंस के अंदर हम देखेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि दिस इज नॉट द कॉम्बिनेशन दैट यू आर गोइंग टू सी. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम था थोड़ा सा NMR केमिस्ट्री पे. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर रिएक्शन. और अगर कोई कहता है कि उसको ये क्वेश्चन आता था तो आई वुड बी वेरी सरप्राइज बिकॉज दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड फ्रॉम अ रिसर्च पेपर विच इज़ इन JACS. सो द टाइटल ऑफ दैट पेपर इज स्टीरियोइलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट for the selectivity of CH insertion of alkylidene carbenes and its application to the synthesis of this particular natural product. Now, this questions has been directly taken from the paper. अगर आप clearly देखें ये पेपर का हमारा क्या एब्स्ट्रैक्ट है, इसको डायरेक्टली वहाँ से कॉपी किया गया. एंड इफ समवन सेज दैट दे नो दिस क्वेश्चन देन आई वुड बी रियली सरप्राइज बिकॉज ये एक पूरा का पूरा रिसर्च बेस और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है. ठीक है, मुझे लगता नहीं है कोई इसको कर भी सकता था. सो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये बोला गया है कि जब आपका क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन आपका क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, जब हमारे ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं तो वो क्या करता है कि दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे
प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कार्बन। ठीक है, ये हमारा कार्बन क्या है कि ये हाइड्रोजन से अटैच है। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या कर रहा है कि ये दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बिकम्स एक्टिवेटेड। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा ये कार्बिन है, ठीक है, ये कार्बिन है, दिस कार्बिन कैन ईजिली इंसर्ट। आपका कार्बिन इंसर्शन के बाद दिस इज व्हाट यू विल एंड अप गेटिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे दिस अलाइनमेंट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर सच टाइप ऑफ एन एक्टिवेशन टू टेक प्लेस। लेकिन हम अगर इस कहानी हमारे हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन आपने देखा हो, दिस हाइड्रोजन HA इज एक्सियल, लेकिन इफ यू ब्लॉक दिस पर्टिकुलर HA, नाउ द ओनली हाइड्रोजन इज अवेलेबल इक्वेटोरियल। हमारा अब क्या है कि दिस इज नॉट परफेक्टली अलाइंड टू गिव द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स। तो इसका मतलब ऑक्सीजन एटम इज डीएक्टिवेटिंग। तो द ओनली वे दिस कार्बन इंसर्शन कैन टेक्स प्लेस इज ऑन वाया द HB। ठीक है, HB से आपका हुआ, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या था, ऑप्शन नंबर 1। बट अगेन हैविंग सेड दैट, आई डू नॉट एक्सपेक्ट एनी स्टूडेंट टू गेट दिस क्वेश्चन राइट, बिकॉज दिस वाज आस्क्ड फ्रॉम अ रिसर्च पेपर। ठीक है, और ये रिसर्च पेपर अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो जस्ट फॉलो दिस पर्टिकुलर रिसर्च पेपर, दिस इज व्हाट दे talk about. Okay, so the next question was based on a name reaction. Again, it was a name reaction called Denheiser annulation. So the mechanism and is depicted here. So this, which is how this particular reaction takes place. So the correct option was option number 1. Again, having said that, this particular name reaction is generally not taught in the exam, and again, I would not expect anyone to get this question right. But again, having said that, अगर आप इन ऑप्शंस के अंदर देखें तो दिस टॉक्स अबाउट काइंड ऑफ अ 4-membered कंपाउंड। ठीक है, 4-membered, एंड दिस इज kind of a 5, this is also 4-membered oxytane ring. So I do not generally expect option 2 or 4 and option 2 and option 4 to be correct. I would have always inclined towards option number 3 and 1. So probably, by simply looking at the structures and going through the general mechanism, you might have came up with the correct answer, which is the option number 1. So this was a pretty straightforward problem. So whenever you have is an alpha Z diisoketone, what do you generate is this particular carbene. So carbene we know are the intermediate which we cannot isolate. So what we generate is basically a carbenium, the carbene at this particular position. So हम यहाँ carbene generate करते हैं. So what we have is a methoxy group. It comes back, it attacks. So this is the intermediate that we form. Further, there is a tautomerization, and under acidic condition, what you end up getting is the formation of this ketone. ठीक है, so the correct option in this case was option number 3. Pretty straightforward. So here a question, this is an interesting question, basic question था, काफी पूछा गया. In IR, the recorded spectra shows a strong and broad band at 3300. ठीक है, strong and broad band है. ठीक है, and it becomes sharp and shifts to this one when the spectrum is recorded in CCl4 at high dilution. अब हमको पता होना चाहिए कि जब हम dilution करते हैं तो कौन से interaction हमारे इम्पैक्ट करते हैं. ठीक है, और हमें वो कंपाउंड के बारे में क्या बताता है, हमको कंपाउंड के बारे में ही बताता है कि द कंपाउंड इज इन्वॉल्व्ड इन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, क्योंकि हमारी क्या होती है कि ओनली द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट इज डिस्टर्ब्ड बाय डाइल्यूशन. हमको पता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डाइल्यूशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता. ठीक है, अगर हमारी इंटर है, ओनली द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डिस्टर्ब्ड. सो दिस इज व्हाट इट टेल्स अस. ऑप्शन नंबर 2 इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड था. और उसके बाद हमारा मास का एक क्वेश्चन है. दिस इज बीन आस्क्ड अस कि हमारा EI के अंदर इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट काफ़ी हार्श आयोनाइजेशन टेक्निक है. इसके अंदर आपका क्या होता है कि डायरेक्टली व्हाट यू गेट इज अ मॉलिक्यूलर आयन पीक. सो व्हाट दे हैव टॉक्ड अबाउट दिस बेसिकली सी मॉलिक्यूलर आयन एट 121, 105, 77 एंड 44. सब प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड ऑनेस्टली अगर आपको देखना भी होता तो यू वुड हैव जस्ट टॉस्ड बिटवीन ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन 3 और 4 तो हमारे हो ही नहीं सकते. ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट दिस इज व्हाट यू फॉर्म. सो 105 तो आपको मिल जाएगा. ठीक है, 121 तो मॉलिक्यूलर आयन है, 145, बट इसके बियॉन्ड आप यू कैन नॉट प्रोसीड. बट विद ऑप्शन नंबर 2 इफ देर इज एन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि NH2 रेडिकल लीव्स, इट गिव्स यू दिस पर्टिकुलर 105. सो कार्बन मोनोऑक्साइड कैन लीव, इट गिव्स यू दिस बेंजीन कार्बोकैटायन विच इज 77 mass, एंड दिस अगर हमारा पूरा का पूरा हमारी मोइटी दिस फिनाइल रेडिकल लीव्स, इट गिव्स अस दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर आयन पीक विच विल गिव अस द 44 mass. सो ये सारी की सारी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है,
So option number 2 is the correct answer.